ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਆਪ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਐਂਡ ਆਈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਬੋਥ ਆਫ ਦੀ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਸੈਪਟੇਬਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੇਡ ਲਾਇਬਲ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਨਾਭਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੈ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਟਾਈਮਲੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸਨ ਜੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਯੂ ਨੋ, ਉਹ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਰੂਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂ ਨੋ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਲਾਸ। ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਠਹਿਰਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਨੇ ਉਹ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਹਜਮ ਕਰ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਿ ਕਰੰਟ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਈਡੀ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਰੀਆਂ ਕੌਣ ਫੜਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀਅਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਬ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਥਰੂ ਈਡੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਰਪਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੋਕੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਨਾਰੀਓ ਹੁੰਦਾ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਯੂ ਨੋ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੋ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਮੈਂਡਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਰੋਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਗੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਫਾਰਮਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਜਾਣਗੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਆਪ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਯੂ ਨੋ, ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਲਤ ਸਨ
ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਰਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿਤਾ। ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, that is not true responsibility। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੱਕਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ ਕਿਉਂ? ਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨਸ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਹੋ? ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਬੀ ਥਰੂ ਅਦਰ ਮੀਨਸ ਦੇ ਵਰ ਆਲਸੋ ਬੀਇੰਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਲੈਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਜੀ ਲੈ ਲਓ ਡਿਸੀਜਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਟੌਪ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਪਾਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਸਸ ਲਈ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਲਾਸਸ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਤੇ ਟੌਪ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਮਨ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਬਸ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ। ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟ? ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ CM ਹੈ, PM ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਲੀ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਟ੍ਰੇਲ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੈਡ, ਇੱਕ ਪਿਓ, ਉਹ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਪਿਓ ਆ? ਉਹ ਪਿਓ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ CM ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। that person should not be put in charge of a state। ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ 3 ਲੱਖ ਕੀ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚ ਆਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਗਰਸ ਹੋਣ, ਐਕਟਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੋਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਸਰ ਫਾਰਮਰ ਡਿਪਟੀ CM OP ਸੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਕੌਣ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਪਰਪਸ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਪੂਲਰ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੇਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿਲਨ ਬਣਾਤਾ, ਰਾਈਟ? ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਪੀ ਕੈਟਸ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧਣੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆਰਡਰ ਲੈਣੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬੇਬਾਕ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰੈਕੇਟਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਡਰੱਗਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਆਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ। UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ,
तो ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ, ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਸੇਫ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਹੈ ਜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਸਟੇਬਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਆਰਮੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? They are the people who give you that stable environment. ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ ਕਿ ਭਈ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ, ਸਟਰੋਂਗ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਐम्प्टिव एक्शन ले सकते हो। सर, शिवसेना की चर्चा बहुत हो रही है। शिवसेना से जो बागी हुए हैं लोग, उन्होंने शिंदे को अपना लीडर माना है। देखो, शिवसेना से बागी नहीं हुए। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि उद्धव ठाकरे जी शिवसेना से बागी हो गए थे। शिवसेना की एक आइडियोलॉजी थी, हम 100% उससे एग्री करें या ना करें, दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन कि हम उनकी आइडियोलॉजी से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। पर जो शिवसेना को लोग वोट देते हैं, या जो लोग, इसका मतलब वो आइडियोलॉजी से एग्री करते हैं, या जो उनके लीडर हैं जिन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शिवसेना में रखा, वो एक सर्टेन आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। और वो आइडियोलॉजी जो शिवसेना की थी, दैट वाज टोटली ऑपोजिट टू द आइडियोलॉजी ऑफ एनसीपी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस जी। अब अपनी पर्सनल ईगो, और जैसे कि इंडिया में काफ़ी बार हो रहा है कि काफ़ी पार्टीज, अगर मैं एक दो पार्टीज को छोड़ दूं, ज़्यादातर पार्टीज फैमिली पार्टीज बन जाती हैं जी। कि और बाला साहब ठाकरे के बेटे उसके प्रधान बने, अब उनके बेटे एक मेजर रोल में काइंड ऑफ रनिंग दी पार्टी। तो आप एक पॉलिटिकल पार्टी जो लोगों की मूवमेंट होती है उसको आप एक फैमिली बिजनेस बना देते हो या फैमिली की ओनरशिप में ले आते हो, तो वो उस पार्टी के, और आज की आप देख लो इस वक्त इंडिया में जो भी पार्टी फैमिली रन पार्टी बनती जा रही है वो टूटती और वीक होती जा रही है। कांग्रेस हमारे सामने एग्जाम्पल है। पंजाब की पार्टियां, मैं चाहे श्रोमणी अकाली दल बादल की बात करूं, चाहे मैं बात कर लूं, आप शिवसेना की बात कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं, ये सारी पार्टियां वीक होती जा रही हैं और टूटती जा रही हैं जी। तो आज की जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है, जो हमारी जनता है, वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो सिर्फ काबिल लीडरों को एक्सेप्ट करेगी, जो डिलीवरी देंगे उनको एक्सेप्ट करेगी जी। अब वो जो ओपोजिशन में लोग गए हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो देवर सिमरिंग। अब ये 2-2.5 साल लोग पूछेंगे गवर्नमेंट कैसे चल गई, क्योंकि 2 साल तो कोरोना में निकल गए। लोगों कोई गवर्नेंस वाली चीज़ नहीं थी, एक आपातकालीन सिचुएशन थी और उसके अंदर बस सर्टन चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिवली रन की जा रही थी, पर कोई भी लोगों तक जाने की और लोगों के व्यू, एक पॉलिटिकल मूवमेंट और उसका स्कोप नहीं था उस टाइम पे जी। पर उनके एमएलए शुरू से इस चीज़ से नाराज थे कि आप जो बिल्कुल आइडियोलॉजिकली आपसे ऑपोजिट, आपने उनसे कैसे कर ली। आप अगली बार, जो शिंदे हैं उनका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि जब मैं वोट मांगने जाऊंगा तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा जी। मैं एक आइडियोलॉजी के लिए स्टैंड करता था और मैं बिल्कुल ओपोजिंग आइडियोलॉजी के साथ जुड़ गया, क्योंकि एक जो हमारे टॉप लीडर हैं उनकी पर्सनल ईगो बीच में आ गई जी। तो शायद शिवसेना शिंदे हैं, उद्धव ठाकरे नहीं है जी। बाला साहेब ठाकरे थे, वो उसका प्रतीक थे, पर अब वो अपने एमएलए से मिलते नहीं हैं। अब आप देख लीजिए, वो अपने एमएलए से मीटिंग्स नहीं कर रहे थे, उनसे मिल, और उनका बहाना था कि मैं बीमार हूँ और मेरे को कोरोना पॉजिटिव हूँ जी। और आधे घंटे बाद वो अब एनसीपी के लीडर से, पवार जी से मिलते हैं और लोगों से मिलते हैं, भीड़ में जाते हैं और कहते हैं जी, उनके लोग बोलते हैं क्लैरिटी, वो बोलते हैं जी अब कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आ गई दूसरी, एक ही दिन में 2-2 रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो आप अपनी कन्वीनियंस से, तो आप इसको एक फैमिली बिजनेस की तरह और एक एलीट बंदे की तरह चला रहे हो कि मैं नहीं एमएलए से मिल रहा, मेरे पास टाइम नहीं है जी। आप अलग तरीके से मिल रहे हो। प्राइम मिनिस्टर को मिलने की जो प्रोटोकॉल है, आप उसमें जबरदस्ती अपने बेटे को घुसा रहे हो जी। तो वो चलो अलग बातें, पर एट द सेम टाइम जो शिवसेना की आइडियोलॉजी है, अब इलेक्शन तो आना ही है जी, राइट। एमएलए नाराज हैं, ऑफ कोर्स आप वो कह रहे हैं जी बीजेपी इसके पीछे है, वो सूरत चले गए। बीजेपी तो बोलेगा ही कि भाई आप अगर नहीं खुश हो, वो उस नाखुशी का फायदा उठा के जो पहले उनके साथ गवर्नमेंट बन रही थी वो वापस गवर्नमेंट बनाना चाहेंगे। बीजेपी और क्या करेगी, वो भी तो पॉलिटिकल पार्टी है ना। पर इसका बेसिक रीजन बीजेपी नहीं है, बेसिक रीजन ये है कि जो करंट शिवसेना की गवर्नमेंट है वो अपनी बेसिक आइडियोलॉजी से बहुत हट चुकी है। अगेन मैं कह रहा हूं, उससे हम एग्री करें ना करें वो एक अलग बात है, पर जो जिस आइडियोलॉजी, जिस नाम पे जिन लोगों ने उनको वोट दी है, वो उसके साथ फेथफुल नहीं रहे। ये प्रॉब्लम है शिवसेना के जो एमएलए उनको छोड़ रहे हैं और जो उन्होंने क्वेश्चन रेज किए हैं जी।
सर, ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम हैं, उन्होंने भारत की सॉवरेनिटी पे विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है भारत की सॉवरेनिटी पे। उनको करना चाहिए, क्योंकि अगर आज मेरे को लगता है कि दुनिया में कोई सॉवरेन कंट्री है तो इंडिया है। हमने तो उस दिन बात की थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 स्टेट्स के अलावा आप जर्मनी, यूके, फ्रांस, ये वहां की जो भी छोटी मोटी कंट्रीज हैं यूरोप की, सबको जोड़ लो। इंडिपेंडेंस वो लेते नहीं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। उनको सस्ता तेल, सस्ता ऑयल, सस्ती गैस पास में मिल रही है, वो पाइपें बंद करवा रहे हैं। वो कोयले पे डिपेंडेंट हो रहे हैं अब दोबारा से, ताकि यूएस खुश रहे। जी। उसके अलावा वो क्या कर रहे हैं कि अपने अपने नेबरहुड में वॉर शुरू कर रहे हैं। यूक्रेन यूरोप में है जी, यूएसए में नहीं है, नॉर्थ अमेरिका में नहीं है। लड़ाई उनसे बहुत दूर हो रही है। बिल्कुल। उनको तो कुछ हथियार बेचने हैं, जी वो कवर करेंगे, नेटो पे एक्सपेंस डाल देंगे, वो भी यूएसए को फायदा हो जाएगा। जी। तो मेरे को ये लगता है कि अगर उन्होंने ये बात बोली है वो ठीक है, और उनकी और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी एसोसिएशन बहुत फ्रूटफुल रहेगी। जी। क्योंकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, और उसकी एक साइड पे ऑस्ट्रेलिया और एक साइड पे हम है। जी। तो अगर दो मेजर फोर्सेस या जिनका मेजर राइट्स हैं उस एरिया पे, तो उनकी पार्टनरशिप हमेशा यूजफुल रहेगी। और अब मैं उसमें उन्होंने बोला कि भाई डिफेंस, एक उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि सिर्फ आप इकोनॉमिक टाई अप करके, उनका मेन पर्पस इंडिया की विजिट का था कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको जॉइंटली डेवलप किया जाए। जी। कि जो इंडिया वेपन्स बना रहा है, जो टेक्नोलॉजीज बना रहा है, उसको कैसे ऑस्ट्रेलिया भी बेनिफिट कर सकता है, और किन किन लेवल पे एसोसिएशंस हो सकती हैं। पर उनकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि आप सिर्फ इकोनॉमिक टाइज रख के किसी कंट्री पे ये नहीं सोच सकते कि आपकी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है और आप मिलिटरीली स्ट्रांग नहीं हो, जी। तो वो आप पे हमला नहीं करेगा क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो। जी। अब चाइना ने बॉर्डर पे बहुत तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इंडिया भी आज उनको मैच करने की कोशिश कर रहा है, मिलिटरली अपने आप को स्ट्रांग कर रहा है। चाइना के पास डेटरेंस होना चाहिए कि अगर वो इंडिया के साथ कुछ भी एडवेंचरस होता है तो इंडिया का जवाब ऐसा होगा कि उनको बहुत नुकसान होगा। ये इंश्योर करना हमारा फर्ज है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये मत सोचो कि आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो इसलिए वो आप पे हमला नहीं करेगा, नहीं। वो उन्होंने 2020 में प्रूव कर दिया। उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ने हमारा साथ दिया, वो हमारे साथ खड़े हुए, दैट वाज वंडरफुल। और अब इंडिया को जितनी भी हेल्प मिल सकती है, चाहे टेक्नोलॉजी, चाहे रिसोर्सेस, चाहे मार्केट्स, आज ऑस्ट्रेलिया इंडियन वेपन्स और टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत बड़ी मार्केट बन सकता है। उन्होंने अभी बहुत बड़ी डील की है यूएसए के साथ, जी, पनडुब्बियों की, जिसमें उन्होंने फ्रांस को इग्नोर किया, वो वाली डील कैंसिल कर दी। अब उनके लिए जो मिसाइल्स बननी है, जो हथियार बनने हैं, उसमें इंडिया एक मेजर सप्लायर हो सकता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो सकती है। तो इंडिया ऐसी बड़ी चीज़ें सोच सकता है। फिर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, उसकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया के लिए। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है उनके लिए भी। जी। तो मेरे को लगता है कि एज अ सॉवरेन कंट्री हमने प्रूव कर दिया है कि हम अपने देश के हित के लिए लड़ेंगे और खड़े होंगे, और आज इंडिया को उसका बेनिफिट मिल रहा है। जी सर, पाकिस्तान और चाइना की हम हमेशा बात करते हैं, और चाइना हमेशा अपने डेब्ट ट्रैप में फंसाता रहता है देशों को, जैसे श्रीलंका के साथ किया उन्होंने। तो पाकिस्तान के साथ भी अभी वही हो रहा है। देखो, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, हम पाकिस्तान और चाइना की हर वक्त बात नहीं करते, हमें अपने हिंदुस्तान की बात करते हैं और उसकी तरक्की और उसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं। जी। पर वो एक हमारे लिए एक मेजर क्योंकि पड़ोस में है, वो कहते हैं ना, अगर पड़ोसी अच्छे ना मिले तो आपकी लाइफ मुश्किल हो जाती है, और पड़ोसी इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम उनकी सिर्फ बात करते हैं कि वो एक इन्वायरमेंट हमारे आसपास उन्होंने नेगेटिव क्रिएट कर रखा है। जी। अब पाकिस्तान के आप पाकिस्तान और क्या करें, वो भी चाहे उनके क्राइसिस अभी पब्लिकली उजागर नहीं हुए हैं, पर वो भी अब डे टू डे बेसिस पे हर बार उनको हर महीने कुछ पैसा चाहिए, वरना वो भी उनके मिनिस्टर को बोलना पड़ेगा चाय कम पियो, ऑफिस बंद कर दो, दुकानें बंद कर दो, बिजली मत यूज करो। वो पेट्रोल खरीदने के उनके पास पैसे नहीं है। और चाइना के लिए $2-3 बिलियन देना कोई बड़ी बात नहीं है। जी। पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता क्या, जब ये $3 बिलियन आता है, इसमें से ज़्यादातर पैसा तो मिनिस्टर और उनके जो फौजी लीडर्स हैं उनके पास ही पहुंच जाता है, उनके पर्सनल बैंक अकाउंटों में, यूके में, स्विट्जरलैंड में, वहां पे जमा हो जाता है। जी। ये सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और चाइना इज मोर देन हैप्पी, क्योंकि इन्हीं लोगों के थ्रू उन्होंने उनके इतने क्रिटिकल असेट्स पे कब्जा कर रखा है, और वो कभी भी पाकिस्तान को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि इंडिया के खिलाफ कोई भी मिस एडवेंचर आप कर लो। जी। वो कभी भी कर सकते हैं। उनको तो एक वेसल स्टेट मिली हुई है आफ्टर गिविंग सम मनी। जी। और ये
जो सिचुएशन बनती जा रही है, इंडिया को इसके बारे में सोचना चाहिए। हम कई बार अपने डिस्कशंस में खुश हो जाते हैं कि पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, लॉसेस में है, हमारा दुश्मन देश या हमारा जो जिसके साथ हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं उनके वो देश स्ट्रगल कर रहा है जी पर जब वो स्ट्रगल कर रहा है वो आपके लिए एक रिस्क बन रहा है। जी तो पाकिस्तान चाइना के डेट ट्रैप में ना जाए, पाकिस्तान की पॉलिसीज किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, आज इंडिया को अपना इन्फ्लुएंस उस डायरेक्शन में लगाना चाहिए। जी हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा कि कैसे पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप को, अनफॉर्चुनेटली उनके पॉलिटिक्स का नैरेटिव है एंटी इंडिया और कश्मीर, जी उनके पास कुछ और कहने को है ही नहीं। तो हमें अपने स्ट्रेटजी, जो हमारे थिंक टैंक हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं, उनको आज सोचने की ज़रूरत है। हमें भी बड़े देशों की तरह सोचना है, चाइना अमेरिका की तरह सोचना है कि कैसे हम वहाँ की पॉलिसी को प्रो इंडिया करें, जी कैसे वहाँ का पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज करें ताकि एंटी इंडिया एक्टिविटी वहाँ से हटे और वो अपने लोगों की प्रोग्रेस की तरफ लगे। जी ये अब मेरे को लगता है कि इंडिया का नेक्स्ट 30 इयर्स का मिशन होना चाहिए बिल्कुल। कि हमने जब हम आज़ादी के 100 साल पे पहुंचे तो पाकिस्तान एंटी इंडिया ना रह जाए, प्रो इंडिया हो जाए। जी ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी चेंज हमें करनी और सोचने की ज़रूरत है, इस तरह से सोचने की ज़रूरत है। हम जब ये बात करते हैं कि उन पर डेट है और हमारे इतने फॉरेन रिजर्व्स हैं, हमें इस छोटी सी बात की खुशी से हटके कि कैसे पाकिस्तान को प्रो इंडिया स्ट्रॉन्ग करना है ताकि वो हमारे लिए बफर बने। जी हम क्यों नहीं बफर क्रिएट करते ताकि ईस्ट की तरफ से, नॉर्थ की तरफ से अब हमें बफर स्टेट्स क्रिएट करने की जरूरत है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान को भी एक इंडिपेंडेंट सोच वाला देश बनाना ज़रूरी है। हाँ, अगर हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं व्हाई नॉट। पर पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन उनके लीडर हैं। जी उनको तक ये बात पहुंचाना, उनको कैसे इन्फ्लुएंस करना है कि आप एक डेमोक्रेटिक, और वहां पे जो रिलीजियस फैनेटिज्म हो गई है, जी जो उनके लिए एंटी इंडिया पॉलिसी बनाना या एंटी इंडिया नैरेटिव रखना और भी आसान करती है। जी तो ये सब चीज़ों को मैं इसीलिए शॉर्ट टर्म नहीं बोला, मैंने 30 साल बोला कि अगले 30 सालों में, 25 सालों में, 35 सालों में हम ये सारी चीज़ें चेंज करना शुरू करें। जी सर, पाकिस्तान से थोड़ा आगे चलते हैं। अफ़गानिस्तान में बीते दिन जो भूकंप आया और उसमें कई जानें गई, बहुत लॉस हुआ। अब तालिबान ने पूरे विश्व को अपील की है कि वो अफ़गानिस्तान को सहायता दें। ये देखो, यही सिचुएशन आप समझ लो, अफगानिस्तान पाकिस्तान का और एक एक्सट्रीम वर्जन ही है। जी जब अच्छी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स नहीं होती, ऐसे विपदा के टाइम पे आम जनता तक हेल्प नहीं पहुंचे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे वैसे इतना पुअर है, ऊपर से ऐसे टाइम पे यू नीड स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स, आप डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स। और इंडिया ने भी पूरी हेल्प करने को बोला है कि हम हर तरह की हेल्प करेंगे और करनी भी चाहिए। जी पर मैं कई बार दुखी फील करता हूँ अफगानिस्तान के लोगों के लिए, वंडरफुल पीपल, जी पर वो वहाँ पे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। जी ये तो 20 साल का सबसे बुरा अर्थक्वेक है, पर अर्थक्वेक आते रहते हैं क्योंकि वो मेजर जो फॉल्ट लाइंस हैं, जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइंस पे वो हैं। और उनके लोगों की किस्मत देखो, जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस पे भी अफगानिस्तान हमेशा रहा है। कभी रशिया, कभी ब्रिटिश एम्पायर, कभी यूएस, कभी पाकिस्तान ने उनको मिसयूज ही किया है क्योंकि वो जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस पे भी हैं और अनफॉर्चुनेटली वो जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइंस पे भी हैं जहाँ पे भूकंप आने के चांस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। जी तो जो लोग ऐसी फॉल्ट लाइंस पे, उनको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है, इसलिए वहाँ के लोगों में एक मेंटल स्ट्रेंथ है और वो इससे डेफिनेटली उभर के आएंगे। और हम लोगों को जो भी हेल्प उनकी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट है उनमें ना तो कैपेबिलिटी है, ना ही डिज़ायर है लोगों की हेल्प करने की, वो इस सिचुएशन को भी मिसयूज ही करेंगे। तो तालिबान गवर्नमेंट उन लोगों की कोई हेल्प कर नहीं पाएगी। तो यहाँ पे उनको एक दूसरे की हेल्प करनी है और हमारे जैसे स्ट्रॉन्ग देशों को वहाँ के जो लोग इस वक्त नीड में हैं उन तक दवाइयाँ, राहत पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। जी शुक्रिया सर। इसी तरह की तमाम ज़रूरी जानकारी लेके आते रहेंगे। आप देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद ऑन पंजाब टुडे ऑनली।